In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, Assalamu alaikum. My name is Miss Rabia and today I will teach you very motivational story, His First Flight, with complete Urdu translation, question answers and the grammar portion. And the writer of this story is Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty was an Irish novelist who was born in the Aran Islands, County Galway and educated at the University College Dublin. He was leading Irish novelist of early 20th century. Liam O'Flaherty आयरिश नावल निगार अरान जज़ायर काउंटी गैलवे में पैदा हुआ और तालीम यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में हासिल की। वो इब्तदाई 20वीं सदी का मशहूर आयरिश नावल निगार है। Now I will give you the short introduction of this story. The story is about a young seagull. His parents, brothers, and sister have already flown off the ledge. He is struggling to fly on a ledge above the deep sea. However, he is afraid to begin the flight. Then his mother plays a trick on him and makes him fly. He feels happy and joins his family. ये स्टोरी एक नन्हे समुंदरी बगले की है। इसके वालिदैन, भाई और बहन पहले ही चट्टान पर से उड़ चुके थे। वो गहरे समुंदर के ऊपर चट्टान की हमवार सतह पर उड़ने की कोशिश कर रहा है, ताहम वो परवाज़ शुरू करते वक्त खौफज़दा हो जाता है। फिर उसकी माँ उसे उड़ने के लिए उसके साथ चाल चलती है, एक ट्रिक खेलती है और वो उस ट्रिक में कामयाब हो जाती है और बगला जो है उड़ने के बाद बहुत ही खुशी महसूस करता है और अपने ख़ानदान के साथ उड़ने में शामिल हो जाता है। Now move on the text with the Urdu translation. The young seagull was alone his ledge. समुंदरी बगला तन्हा अकेला चट्टान की हमवार पट्टी पर था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. उनके साथ उड़ने में खौफज़दा रहा। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब भी वो किसी चट्टान के किनारे दौड़कर आता कि मैं उड़ूं और परों को फड़फड़ाने की कोशिश करता तो वो खौफज़दा हो जाता था। The great expanse sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. नीचे वसी समंदर दूर दूर तक फैला हुआ था, मीलों दूर नीचे की तरफ था। He felt certain that his wings would not support him. उसे यकीन था कि उसके पर कभी उसकी मदद नहीं करेंगे। किस में मदद नहीं करेंगे? उड़ने में उसकी मदद नहीं करेंगे। Because he was frightened. So he bent his head, ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए वो सर झुकाकर हमवार चट्टान के नीचे छोटे सुराख में दौड़ कर जाता जहाँ वो रात को सोता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और उस वक्त तक उसका हर भाई और बहन जो कि उससे छोटी भी थी, जिनके पर उसके परों से छोटे थे, वो चट्टान के किनारे की तरफ दौड़े, उन्होंने परों को फड़फड़ाया और उड़ गए। He failed to muster up courage to that plunge which appeared to his desperate. His father and mother had become around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away. But for the life of him, he couldn't move. वो उड़ान के लिए हौसला ही ना पकड़ सका, हौसला पकड़ने में नाकाम रहा। उसका बाप और माँ उससे ज़ोर ज़ोर से पुकारते, उसे बुरा भला कहते, उसे धमकी देते कि अगर वो ना उड़ा तो वो चट्टान पर उसको भूखा रहने देंगे, भूखा मरने देंगे। लेकिन किसी तरह भी उस पर कोई असर ना हुआ क्योंकि वो बुज़दिल था, वो डर रहा था।
किस बात से डर रहा था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, उस वास्ट सी में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा. So this was the first paragraph of this story, and in this paragraphs you have learned about a young seagull. His brothers, sisters and family had already flown away, and he left alone on the ledge, and he was very frightened to fly. He couldn't muster up the courage. So move on the next paragraph. Now the second paragraph. That was 24 hours ago. Since then nobody had came near to him. ये पिछले 24 घंटे की सूरत हाल थी कि उसके पास कोई भी ना आया, उसकी फैमिली में से कोई भी ना तो उसको खाना देने के लिए आया ना पूछने के लिए आया. ठीक है, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में यही कुछ पढ़ा. The day before, all day long, he had watching his parents flying all day about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ठीक है, एक दिन पहले उसने वालदैन को तमाम दिन सारा दिन वो देखता रहा कि उसके पेरेंट्स किस तरह से उसके भाइयों को और बहन के साथ उड़ रहे हैं, और वो उनकी परवाज़ के फ़न में महारत किस तरह से उनको दे रहे हैं, और वो उनको सिखा रहे हैं कि लहरों को किस तरह से छू कर गुज़रना है और उछल कर मछली को किस तरह से पकड़ना है. ये सब कुछ वो उसको सिखा रहे हैं उसके बहन भाइयों को, और वो देखता रहा. ठीक है, एक दिन पहले की बात है. He had in fact seen his older brother catching his fish, herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. And all morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, tuning him for his cowardice. इसने हकीकतन बड़े भाई को पहली मछली पकड़ते और फिर चट्टान पर खड़े उसको निकलते यानी कि खाते हुए देखा, और ये भी देखा कि उसके वालिदैन किस तरह से फ़ख्रिया अंदाज में आवाज़ें निकाल रहे हैं, यानी कि वो बहुत खुश हैं उसके बड़े भाई को देख के जो कि उसने एक्ट किया, और फिर बड़े ही फ़ख्रिया अंदाज में उसके गिर चक्कर भी लगा रहे हैं. तमाम सुबह सारा ख़ानदान इन निचली वसी जो सतह पर जो चट्टानें थीं सामने वाली उसके सामने, उस पर वो चल रहे थे और इसी तरह से ये सारा कुछ खेल खेल रहे थे, और उसके साथ साथ वो उसको ताने भी दे रहे थे. कौन से ताने दे रहे थे? बुज़दिली के कि वो कॉवर्ड है, वो फ्लाई नहीं कर रहा. तो ये था सेकेंड पैराग्राफ, और इस सेकेंड पैराग्राफ में आपने देखा कि किस तरह से उसकी फैमिली जो है उसको दिखा रही है कि हम कितने खुश हैं, और उसके बहन भाई किस तरह से फ़िश पकड़ के खा रहे हैं. उसको ये सब कुछ मोटिवेट करने के लिए आप कह सकते हैं कि सब कुछ किया जा रहा है, और साथ साथ उसको ताने भी दिए जा रहे हैं ताकि वो कुछ करे, हिलजुल करे, उड़ने की कोशिश करे, इस तरह से बुज़दिली से बैठा ना रहे. नाउ द थर्ड पैराग्राफ. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. अब क्या है कि चट्टान पर सूरज तेज़ी से चमक रहा है और पूरे आबोताब से हमवार चट्टान पर रोशन था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको क्या है, गर्मी महसूस हो रही है. क्यों हो रही है? कि उसने कुछ खाया हुआ भी नहीं था, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया हुआ था. Then he found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. फिर क्या हुआ कि उसे चट्टान के दूसरे सिरे पर से मैकरल मछली की खुश्क दुम मिली. सही. Now there was not a single scrap of food left. He had searched every inch, rooting among the rough dirt-caked straw nest where he and his brother and sister had been hatched. अब क्या है कि उसे कोई खुराक कोई कुछ ना मिली, और उसने खुरदरे से गंदगी से लदे हुए तिनकों से बने हुए घोंसले में भी देखा जहाँ उसके भाई और बहन वगैरह सींचे गए थे यानी कि पैदा हुए थे. He even nipped at the dried piece of a spotted eggshell. उसने हता के दागदार अंडों के जो छिलके थे उसको भी नोचा.
इट वॉज लाइक अ ईटिंग पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, और ये ऐसा था जैसे वो अपने जिस्म के हिस्से को खा रहा हो। He had been trotted back and forth from one end of the ledge to the another. फिर क्या है कि उसने चट्टान के आगे पीछे चक्कर लगाए। His grey body, the color of the cliff, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. अब कह रहे हैं जो उसका जिस्म था ग्रे कलर का, और टांगें भी थी ग्रे कलर में, और लंबी नखरीली चाल में बग़ैर उड़े वालिदैन तक पहुंचने के लिए वो रास्ते तलाश करने की कोशिशें उसकी जो है वो जारी रहीं। बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन द sheer fall of precipice with the sea beneath, and between him and his parents there was a deep white चाज़्म। लेकिन हर तरफ चट्टान के किनारे इंतहाई ढलवान थे और नीचे समुंदर था। उसके और वालिदैन के दरमियान गहरी खाई थी। एंड अबव हिम ही कुड सी नथिंग, और ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था। द प्रेसिपिस वॉज sheer and top of it was perhaps further away than the sea beneath him. ढलवान जो है वो गहरा था और शायद उसकी चोटी नीचे समुंदर के मुकाबले में ज़्यादा दूर थी, इसलिए उसको डर लग रहा था। नाउ द थर्ड पैराग्राफ। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing one leg with other leg hidden under his wing, he closed his one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. आहिस्ता आहिस्ता बगले ने क्या किया, चट्टान की तरफ वो आ गया कि मुझे मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली देखे, और उसने क्या किया कि एक टांग पर खड़ा हो गया, दूसरी को अपने परों में छुपा लिया, फिर एक आंख भी बंद कर ली, और फिर दूसरी उसने ऐसे जाहिर किया कि जैसे वो सो रहा है। अब सिचुएशन देखें कि सीगल जो है वो भी एक्टिंग कर रहा है कि उसको भूख लगी हुई है, सो रहा है, ऐसे ही सो गया। और दूसरी तरफ आप सिचुएशन देखें कि पेरेंट्स का क्या रद्द अमल है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, ठीक है, इसकी इस एक्टिंग के बावजूद भी उसके वालिदैन ने इस चीज़ का उसकी तरफ कोई तवज्जो ना देखा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक। फिर उसने क्या देखा कि उसके दो भाई और बहन को उसने सतह मुर्तफ़ा पर लेटे ऊँघते देखा, उनके सर गर्दनों में छुपे हुए देखा, यानी कि वो भी रिलैक्स कर रहे हैं। His father was preening the feathers on his white back. उसका जो अब्बू था वो क्या कर रहा था, सफ़ेद पीठ पर परों की सफाई में लगा हुआ था, ठीक है। Only his mother was looking at him. क्या है कि सिर्फ उसकी माँ जो है उसकी तरफ देख रही थी, ठीक है। She was standing on a little high hump on the plateau. वो सतह मुर्तफ़ा के छोटे बुलंद टेले पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward now and again. He tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of the beak on the rock. उसने अपनी जो सफ़ेद छाती तानी हुई थी, उसने मछली के टुकड़े को जो उसके सामने पड़ा हुआ था बार बार तोड़ा, और फिर उसने चोंच के दोनों अतराफ से चट्टान पर उसको रगड़ा। तो ये क्यों कर रही थी, उसकी मदर भी प्रिटेंड कर रही थी, खुराक यानी कि फूड उसकी तरफ शो कर रही थी ताकि उसका भी दिल चाहे कि वो फूड खाए, और वो उसी सूरत में मुमकिन था कि जब वो खुद उड़ सके और ख़ुद फ़िश को डाइव कर सके। द साइट ऑफ फूड मेड ऑन हिम हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। ही अटर्ड अ लो कैकल, हिज मदर crackled too and looked over him. अब क्या है कि जो खुराक का मंजर माँ उसके सामने पेश कर रही थी, उस मंजर ने उसको पागल कर दिया था, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया हो भी ना था, भूख भी बहुत लगी हुई थी। उसे इस तरह खुराक को काटना बहुत पसंद था, जो चोंच को तेज़ करने के लिए बार बार रगड़ता। उसने धीमी आवाज़ निकाली, यानी कि माँ को कहा कि उसको भूख लगी हुई है। उसकी माँ ने भी आवाज़ दी और उस पर नज़र डाली। Now, next paragraph.
गा 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 he cried begging her to bring him over some food. उसने गा गा की आवाज़ निकालते हुए माँ से खुराक लाने की दरख्वास्त की जो कि वो खा रही थी. गवावा, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. माँ ने जो भी है वो तंजन औला की आवाज़ निकाली और चीखी, लेकिन उसे इल्तिजा करते एक आधा मिनट के बाद ही खुराक लाने को कहा. और फिर क्या हुआ कि सीगल ने खुशी से एक चीख निकाली. अब क्यों निकाली चीख कि उसने देखा His mother had picked up a piece of fish and was flying across him. कि उसकी माँ ने वो पीस मछली का उठाकर पकड़ा और उसकी तरफ आ रही है, इसलिए उसने चीख मारी खुशी से. वो खुश था कि अब माँ उसको खाना खिलाने के लिए आ रही है. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब क्या किया कि सीगल में ज़रा हरकत आ गई. वो बेकरारी से बाहर झुका आगे की तरफ यानी कि और उसके करीब होने की कोशिश की और उसने पंजे चट्टान पर मारने शुरू कर दिए, यानी कि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. जैसे ही उसकी माँ उड़कर उसके करीब तर होने की कोशिश की तो वो जब वो उसके सामने चट्टान के करीब पहुंची तो वहाँ आकर रुक गई. उसकी टांगें हवा में लटकी और पर जो है वो रुके हुए थे, साकत थे. माँ की चोंच में मछली का टुकड़ा तकरीबन उसकी पहुँच में ही था, बिल्कुल पास ही था. ठीक है, उधर से माँ टुकड़ा ला रही थी, इधर से ये थोड़ा थोड़ा आगे हो रहा था. वो एक लम्हा भर हैरान था कि और उसने सोचा कि करीब तर क्यों नहीं माँ, और करीब नहीं आ रही. और उसने भूख की दीवानगी पर मछली पर झिपटा मारा और आगे की तरफ जैसे ही हुआ तो देखें अब क्या होता है. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. जी हुआ कुछ यूं कि चीख मारते हुए वो बाहर नीचे खला में गिर गया कि माँ वहाँ रुक गई टुकड़ा लेके. तो वो भूखे मारे आगे हुआ कि माँ क्यों नहीं पास आ रही. उसको एहसास ही नहीं हुआ, अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कहाँ जा रहा है. नीचे समुंदर है. वो डर सारा उसके, क्योंकि भूख इतनी सख्त उसको लगी हुई थी, वो सारा डर उसका डर की बजाय उसके माइंड में खुराक चल रही थी. ठीक है, उसकी माँ ऊपर की तरफ तेज़ी से उड़ी. जूं ही वो उसके नीचे से गुजरा उसने उसके परों की सरसराहट सुनी. यानी जब मदर ऊपर की तरफ उड़कर गई उसके पास से गुजरकर तो उसने मदर के परों की उड़ने की सरसराहट सुनी. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर क्या हुआ कि उस पर शदीद खौफ तारी हो गया और उसका दिल बंद हो गया. He couldn't see nothing. उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. The next moment he felt his wings spread outwards. और उसके अगले ही लम्हे क्या था कि उसने अपने परों को खुलता हुआ महसूस किया. The wind rushed against his breast feathers and then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. क्या था कि जो हवा है उसकी छाती के परों से फिर पीठ के नीचे से होती उसके परों से गुजरती थी. वो महसूस कर रहा था उसके परों के सिरे हवा को काट रहे हैं. अब वो मुंह के बल गिर नहीं रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे और ऊपर की तरफ हो रहा था. He just felt a bit dizzy. उसने महसूस किया कि उसको चक्कर आ गया है, चक्कर आ रहे हैं. Then he flapped his wing once and soared upwards. फिर उसने क्या किया, अपने परों को फड़फड़ाया और फिर ऊपर की तरफ बुलंद हुआ. He raised his breast and banged against the wind. Ga 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 hula. His mother swept past him.
her wings making a loud noise. फिर क्या किया, उसने खुशी में आवाज़ें निकाली और परों को हरकत दी और वो बुलंद हुआ. उसने छाती तानी और हवा में मुड़ा और गा 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 गाउला की आवाज़ें निकाली और उसकी माँ भी तेज़ी से उसके पास उड़कर आई और उसके परों से ज़ोरदार आवाज़ आई. He answered her with another scream. उसने माँ का एक दूसरी चीख से जवाब दिया. Then he uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. His mother flew past him. He answered him by a scream. Then his father flew over him screaming. Then he saw his two brothers and sister flying around him, curveting, banking and soaring and diving. फिर उसने क्या किया, दूसरी चीख से जब माँ का जवाब दिया, फिर उसका बाप भी उसके पास उड़ता उड़ता आ गया और उसके बहन भाई भी उसके पास इर्द गिर्द उड़ने लगे और फिर बुलंद परवाज़ की और दुबकी भी लगाई. Then he completely forgot that he had not been able to fly, commenced himself to dive, soar, curvet and shirking shrilly. फिर वो ये मुकम्मल तौर पर भूल गया था कि वो उड़ने के काबिल ना था. उसने दुबकी लगाई, ऊंचा उड़ना और इधर उधर मुड़ना और ज़ोर से चलाना शुरू किया. He was nearer the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो समंदर के करीब था, वो समंदर पर सीधी परवाज़ कर रहा था. He saw beneath vast green sea beneath him, with little ridges move over it. अब उसे नीचे वसी सरसब समुंदर दिखाई दे रहा था. इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हरकत करती हुई उसको दिखाई दी. He turned his beak sideways and crowed musically, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him pieces of dogfish. अब क्या है कि उसने चोंच को एक तरफ मोड़ा और खुशी से आवाज़ निकाली और उसके इर्द गिर्द सारा ख़ानदान चला रहा था, यानी कि खुशी से शोर मचा रहा था. उन्होंने उसकी तारीफ़ भी की और वो अपनी चोंचों में से उसे डॉग फिश के टुकड़े भी पेश कर रहे थे. So this was the story about young seagull with Urdu translation. And in the next video lecture you will learn question answers, grammar portion, MCQs and words meanings of this chapter.